जस्ट बी ऑनेस्ट एंड थोड़ा सा दूसरे कैंडिडेट से ट्राई करो कि थोड़ा सा हटके हो, बट इट्स नॉट फेक. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि आई एंटर्ड फॉर जॉब सिक्योरिटी बिकॉज मुझे ये लगा था कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है तो यहाँ पे आना चाहिए. बट वंस आई एंटर्ड आई रियली लाइक नोइंग अबाउट इट, लाइक नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्टफ. So that's why I stayed. Hi everyone, welcome to Camality with Toppers, an initiative by An Academy. So I am Shivangi, an educator on An Academy. So today we have with us Shushti Gormare, who has cleared SBI PO 2019. आइए उन साथ पूछते हैं उन्हें कौन कौन से challenges face करनी पड़ी SBI PO exam crack करने के लिए. Because as we know, success is not inherent, we have to earn it. We have to do hard work to achieve it. So आज के टॉपिक से हम पूछेंगे उन्हें क्या क्या challenges overcome करने पड़े and what are her strategy and study plan. So let's get connected with Shushti on video call. Hi Shushti. Hi Shivangi. How are you? I'm good. Okay, so सबसे पहले hearty congratulations on your achievement that you cleared SBI PO. Thank you. Okay, so सबसे पहले शुरू करती हूँ जो सबसे important question होता है students के लिए. What was your reaction जब आपको पता चला आपने SBI PO जैसी बड़ी exam clear कर लिया? So what was your reaction? I was really happy. I was working as SBI assistant already, but the fact that I had cleared PO, I was over the moon. Okay, great. So जैसा आपने बताया आप पहले ही SBI assistant की तरह junior assistant की तरह काम कर रही थी. तो आप अपनी जर्नी बताओ कौन कौन से एग्जाम आपने क्लियर किए एंड कौन कौन से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए. सबसे पहला एग्जाम जो मैंने दिया था विदाउट मच प्रिपरेशन वाज SBI PO. So I didn't clear it, not even pre. Then after that which year? I think 17. Okay, 17. ठीक है. Yeah. Then after that I cleared SBI PO. Went until interview part but didn't clear the whole exam. Then SBI assistant. Okay. I joined it, and then I cleared as IBPS PO again till interview, but did not clear everything. And after that, this is my second SBI PO exam that I cleared. ओके ओके. सो काफी सारे आपने एग्जाम्स दिए हैं और कई बार आपको फेलियर भी देखने को मिले. तो कैसा लगता था जब पहले एग्जाम में आप फेल हो गए या फिर अनसक्सेसफुल हम कह सकते हैं उसको, अनसक्सेसफुल रहे, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? कैसा लगा? बहुत डिमोटिवेशन मिली हो या फिर कैसे उसको ओवरकम किया? No, I always thought positively that this is just my first exam or second exam. I'm not yet completely prepared. So I just thought of I should prepare more. That's all I thought about. ओके. एंड IBPS में इंटरव्यू तक पहुंच के फिर फाइनल कंप्लीट ना कर पाना, तो फिर कैसा लगा था? Yeah, that was really bad, but the interview was not up to the mark in my opinion. So I ओके. सो आपको लगा कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी रह गई है एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ लिटिल बिट मोर. ओके. सो आई थिंक यही जो छोटी छोटी बातें होती है जो हमें फेलियर मिलने के बाद पता लगता है, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा उस टाइम वी आर प्रिपरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क एंड वी हैड टू प्रिपेयर मोर. तो आई थिंक ये जो चीज है ना, ये आप बच्चों को बहुत अच्छे से बता पाओगे क्योंकि उन्हें लगता है हमने अपना बेस्ट दे दिया और फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए. तो आपको क्या लगता है अगर कोई अनसक्सेसफुल रह जा रहा है एक अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में, तो क्या कमी रहती होगी? ऑब्वियसली कमी सबकी अपनी अपनी रहती है, बट स्टिल उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें लगता है कि वी डिड आवर बेस्ट. I think that after each exam you should know where you failed, why you failed. You should analyze why you failed, and then work on it, work more on it. Because with me the same thing happened. I was weak in quant. When I didn't clear SBI PO pre, I realized that I have to work more on quant. And when I didn't clear IBPS interview, then I realized that I need to focus more on
General knowledge, because a lot of times what happens, and in my case too, that I prepared on time for GK. You should always be in touch with GK if you are preparing for any competitive exams. So yeah, Yeah. that was one point. Okay. So what according to you should be the qualities that a bank PO should possess during his preparation life? मतलब अपने preparation time में ही उनको कौन-कौन सी quality तो possess कर लेनी चाहिए to be an SBI PO? I think the most important quality is determination. You should stick to what you're doing, and consistency. Okay. Consistency is also the key, because once you leave practice, it's impossible to get on track. Not impossible, but tough to get on track. Tough to get. तो ये बात तो आपने बहुत सही बोली कि अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन की तो कोई भी एग्जाम हम बोल सकते हैं, छोटी छोटी एग्जाम हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट इन द बैंक एग्जाम्स क्वांट्स इंग्लिश एंड रीजनिंग नीड्स प्रैक्टिस। ये सारे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस चाहिए होती है, और प्रैक्टिस अगर गई तो एग्जाम वहां पे प्रीलिम्स निकले। एग्जैक्टली। तो आप क्या टिप देना चाहोगे अगर कोई फ्रेशर है और उसे एग्जाम शुरू करना है, ही वांट्स टू बिगिन द प्रिपरेशन फॉर एनी बैंक एग्जाम, तो कहाँ से वो शुरू करे, क्या आप टिप देना चाहोगे? First of all, you should know the exam pattern. Then you should prepare according to the exam pattern. And while doing that, first prepare the basic concepts. Like when you are doing quant, first prepare basic concept and look at the videos of each chapter, prepare it thoroughly, and then give mock tests, lots and lots of mock tests. Like every day there should be one mock test, at least for pre. ओके। सो ये तो बिगिनर के लिए एक छोटा सा टिप रहा कि आपको अगर प्रिपरेशन शुरू करना है तो यू कैन स्टार्ट विद गिविंग मॉक टेस्ट एंड देन एनालाइजिंग योर वीक एरिया, और फिर उसकी वीडियोस देख के उसे अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट करें। ओके, तो शुरू करते हैं आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी से। सबसे पहले आप हमें ये बता दो कि बैंक एग्जाम्स में कौन-कौन से फेज होते हैं और क्या-क्या सब्जेक्ट पूछते हैं? There are three phases. One is the preliminary exam, then comes main exam, and then GDPI. For pre-exams, you just have to work on your speed and accuracy. So first of all, clear basic concept. Then after that, practice a lot and give a lot of mock tests. For mains exam, the same things, except the level is a little bit harder. So try to give mock tests and analyze them more thoroughly. And then comes the GDPI. GDPI is not that much of a difficult part. Just keep in touch with GK from the last 6 months and know the banking, what's going on in the banking sector. Yeah, terminologies and what's going on in the banking sector. That's all. और प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं? प्रीलिम्स में होता है एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद इंग्लिश, और लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव होता है 35 और 35 मार्क्स का, और इंग्लिश होता है 30 मार्क्स का। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे। एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए, मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, प्रीलिम्स की तैयारी आपने की कैसे? सिर्फ मॉक टेस्ट पर रिलाई किया या फिर वही पहले सारे चैप्टर्स पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर मॉक टेस्ट लगाया? सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम? I was doing both the things simultaneously कि जो चैप्टर है वो भी करो, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, और मॉक टेस्ट भी दो साथ में। तो कब आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया? 1 महीने प्रिपेयर करने के बाद, या फिर पूरा खत्म कर लिया, एक बार सारे चैप्टर्स खत्म हो गए जब? ये तो होता है, कई बच्चे बोलते हैं मैम एग्जाम में मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें? तुरंत से शुरू कर दें या फिर एटलीस्ट हम 1 महीना प्रिपेयर करने के बाद शुरू करें? मैंने तो साइमल्टेनियसली, मतलब स्टार्टिंग से आई थिंक एक आधा वीक ही मैंने कुछ किया होगा जो स्टडी था, उसके बाद ही मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज मॉक टेस्ट से ये होता है कि पता चलता है कि कितने पानी में, और मतलब कितना स्पीड बढ़ाना है तुम्हें, कि तुम किस लेवल पे हो, पता चलता है। अगर जब स्टडी करने लग जाते हो तो फिर इतना ये नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता कि कितना लेवल है, क्या है। तो इसकी वजह से तो मॉक टेस्ट
पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर बहुत बड़े बड़े नहीं देने तो छोटे छोटे 15 मिनट्स के जो होते हैं आजकल वेबसाइट्स पे वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स की तैयारी आपने कहाँ से की? कॉन की तैयारी मैंने सारा सब कुछ जो है ऑनलाइन ही किया, तो उसमें कुछ चैनल्स थे जो मैं रेफर करती थी, और दैट्स ऑल, दैट वाज द ओनली थिंग आई रेफर्ड। ओके, सो आपने ऑनलाइन ही तैयारी की है कॉन्स वगैरह? हाँ, यस। और फिर ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट वगैरह लगाए? हाँ, ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट वगैरह लगाए। अच्छा, और रीजनिंग की तैयारी कैसे की आपने? रीजनिंग की तैयारी टेस्ट देने से, टेस्ट दो टेस्ट, दैट्स ऑल, बिकॉज उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। इट्स जस्ट बेसिकली रीजनिंग, व्हाट लॉजिक यू अप्लाई, इफ यू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस ना तो तुमको आ जाता है। उसका ऐसा कुछ फिक्स कंसेप्ट नहीं होता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। जैसे रीजनिंग में तो इतने सारे पजल्स पूछते हैं, तो वो पजल की स्ट्रेटेजी कुछ होती है, कैसे इस पजल को सॉल्व करना है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है या पर्टिकुलर टाइप के पजल ज्यादा सॉल्व करके जाने चाहिए बच्चों को? नहीं, ऐसा तो कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के आ सकते हैं ज़्यादा पजल्स। सीटिंग अरेंजमेंट है, फ्लोर नंबर के हिसाब से प्लेस करना, या दोज आर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड अ लॉट। फिर सबसे कम आता है ब्लड रिलेशन वगैरह, ब्लड रिलेशन डायरेक्शंस, बट स्टिल कीप देम। पढ़ना तो है ही, कुछ छोड़ के आप सकते हो, छोड़ना नहीं है कुछ भी। बिल्कुल। और इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की तैयारी कैसे की आपने? इंग्लिश का तो मेरा सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए मैंने उसका ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं कराए हुए हैं। मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ती थी तब, द हिंदू जो है उसका जो एडिटोरियल सेक्शन है, बस वही पढ़ने के लिए, मतलब बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था तो मैं वही पढ़ती थी बस। तो आपने रीडिंग की है बेसिकली इंग्लिश के लिए? हाँ, यस। ओके, और मॉक टेस्ट में आपको मार्क्स कैसे कैसे आते थे? अगर आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाते थे तो आपको किस किस तरह के मार्क्स आते थे? Marks, I don't remember them quite well, but they were not good enough. They were never good enough actually. But yeah, I was using olive board tests and mock tests at the time. So once I crossed the level of 54 marks, then I started cracking exams. Before that, it wasn't quite well. बट एक बार 54 या 50 क्रॉस हो गए उसके बाद हो सकता है कि एग्जाम क्रैक हो सकता है। ऑलिव बोर्ड में 50 प्लस 55 प्लस क्रॉस होते ही समझ आ जाता है कि हाँ अब हम ट्रैक पे आ चुके हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सो सबसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट भी दो, उसके एनालिसिस भी करो, एग्जाम टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो आपने ये टाइम मैनेजमेंट कैसे की? मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये अलॉट कैसे किया आपने? सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो, और तुम्हारा जो प्राइम टाइम होता है उसमें करो। प्राइम टाइम मतलब जब तुम्हारे दिमाग में सबसे ज़्यादा बातें, इंफॉर्मेशन ये होती है तब जाके, जैसे सुबह में ज़्यादा होता है तो उस वक्त कौन को टाइम दो। शाम में ज़्यादा फन चीज़ें कर सकते हो तुम, तो मुझे मज़ा आता था पजल्स करने में, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग जो है वो शाम में करती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू लव सॉल्विंग दोस पजल्स। तो फिर वही है, जैसे मॉर्निंग में हमने क्वांट्स कर लिया, क्योंकि क्वांट्स जनरली बच्चों की नाइटमेयर होती है, सबसे टफ एरिया रहता है, तो सुबह अपने क्वांट कर लिए 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, देन फिर बीच में इंग्लिश कर ली, फिर शाम में रीजनिंग कर लिया, फिर एक फिक्स टाइम पे मॉक टेस्ट दे दिए। हर दिन देना होता है या फिर ऑल्टरनेट डेज? व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी? ऑल्टरनेट डेज भी चलेगा और रोज दिया तो बेटर है एक्चुअली, बट ऑल्टरनेट डेज भी चलेगा इफ यू आर बिजी। जैसे जब मैं वर्किंग ये इसमें थी, एसबीआई असिस्टेंट थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था मॉक्स देने के लिए, तो मैं अल्टरनेट डेज या फिर 2 डेज के इंटरवल पे देती थी मॉक्स। ओके, तो वो भी चलते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जब तुम प्रॉपरली एनालाइज कर पाओ तब। जी, और एनालिसिस करना कितना इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस? एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर मॉक टेस्ट होगे लेकिन मिस्टेक्स पता ही नहीं चलेगी तो आगे फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट होंगी, सो देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग मॉक्स अगर तुम एनालाइज ही नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और एनालिसिस कैसे करना होता है, ये भी कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि हम एनालिसिस करें कैसे मॉक टेस्ट की? रिलेट करना है बस कि हमने क्या, कौन सी मेथड यूज की, इसमें गलत क्या हो गया, गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया। अभी मैं जब काम नहीं कर रही थी, जब मैं असिस्टेंट नहीं लगी थी, मेरे पास पूरा टाइम था, तो मैं एक बुक मेंटेन करती थी, मिस्टेक्स बुक नाम की,
तो उसमें मैं शॉर्ट में लिख के रखती थी कि आई मेड दिस मिस्टेक एंड I used to refer to it before giving another mock test so that I don't repeat that same mistake in the mock. That's an awesome tips I think students को जो मिला होगा कि आप अपनी एक मिस्टेक बुक बना सकते हो और हर मॉक में आप भर भर के मिस्टेक करते हो, उस मिस्टेक को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम ना करो। तो काफी बढ़िया आपने टिप दी। और इंग्लिश की बात करती हूँ, इंग्लिश में आपने कहा आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते थे, तो वहाँ पे आप यू मतलब मस्ट हैव केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वोकैबुलरीज, तो उन वोकैब को आप लिखते थे, उसको नोट बनाते थे? No, I made cue cards, little cards that I used to keep stapled, and whenever I had time, I used to go through those cards. It was fun, and because I had written it with my own hands, then it was ज़्यादा memory retention ज़्यादा होता था. Yeah. So ये काफी आपने बढ़िया बात बताई है, वोकैबुलरी को थोड़ा फन वे में रिमेम्बर करना है, तो अपने हैंड राइटिंग में लिखें तो हम ज्यादा दिन उसको रिटेन कर सकते हैं, तो ये चीज हमारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगी, आप नोट्स बनाते थे या नहीं प्रिपरेशन के टाइम? लाइक क्वांट्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लग गए या शॉर्ट ट्रिक लगा या कुछ भी इंग्लिश में, रीजनिंग में, तो आप नोट्स बनाने में विश्वास रखती थी या नहीं? नोट्स बनाती थी मैं, लेकिन ज़्यादा नोट्स नहीं बनाती थी बिकॉज मैंने ऑनलाइन ही किया था, तो मैक्सिमम तो मेरे इसमें स्क्रीनशॉट ही थे सेव, तो उसमें से ही देखती थी। हाँ, बट जो बहुत मतलब टफ कॉन्सेप्ट्स थे या फिर नहीं होता था जल्दी ग्रास्प, या फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स थे जो मुझे बाद में भी काम में आएंगे, तो वो उसकी नोट्स बना के रखी थी मैंने, जैसे सिंप्लीफिकेशन के जो ट्रिक्स होते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। आपने बताया कौन सा आपने ऑनलाइन किया, रीजनिंग भी आपने खुद प्रैक्टिस से की है, और इंग्लिश आपने न्यूज़पेपर से पढ़ के किया है। अब हम चलते हैं मेंस की प्रिपरेशन की तरफ। क्या आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साइमल्टेनियसली की थी, या फिर पहले प्रीलिम्स और फिर मेंस के पहले मेंस की तैयारी स्टार्ट की? किस तरह से आपने मेंस को टैकल किया? पहले मैंने प्रीलिम्स की थी, मेंस का मैंने प्री क्लियर होने के बाद किया था। तो हाँ, सिर्फ जीके जो था वो शुरू से लेके एंड तक साइमल्टेनियसली करना चाहिए, मतलब प्री और मेंस का साथ में करना चाहिए, अदरवाइज हो जाता है वो बाद में भी। मेंस का जो है उसका सिर्फ टेस्ट देना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अगर लेट्स सपोज कि आईबीपीएस का मेंस नवंबर में है, लेट्स सपोज, तो कितने दिनों के करंट अफेयर स्टूडेंट्स को करके जाना चाहिए? किसी भी केस में पिछले 6 मंथ्स के होने चाहिए करंट अफेयर्स। ओके, पिछले 6 मंथ्स के। हाँ, पिछले 6 मंथ्स के। तो अगर मैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करूं जो कि मेंस में पूछते हैं, तो उसमें किसका वेटेज ज्यादा रहता है? चलो ये तो सबको पता है, करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा रहता है, बट क्या बैंकिंग अवेयरनेस की वेटेज वहाँ पे कितना रहता है? वेटेज तो बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मतलब वही बैंकिंग अवेयरनेस में आपके कहने का मतलब होगा बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज वाले क्वेश्चन काफी सारे पूछते हैं। टर्मिनोलॉजी ज्यादा नहीं पूछते हैं, जो जनरल टर्म्स में मतलब न्यूज में चल रहा है बैंकिंग से रिलेटेड या हाँ, बस वो ज्यादा पूछते हैं। तो आपने कहाँ से जनरल अवेयरनेस की तैयारी की? जैसा मैंने कहा कि उसमें भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और मतलब फाइनेंशियल जो सेक्शन है वो, और एडिटोरियल, ये दोनों ही सेक्शन। देन उसके बाद अफेयर्स क्लाउड नाम का जो है वेबसाइट, उसमें भी आते हैं, बैंकिंग का एक सेपरेटली पीडीएफ आता है उसका, तो उसमें से भी कर सकते हैं, वो भी काफी थरो होता है। और लास्ट में किसी की कैप्सूल वगैरह आपने रेफर की? नो, आई डिडंट रेफर टू एनी सच कैप्सूल, मतलब जीके का तो नहीं किया था। यूट्यूब वीडियो देखती थी मैं, जो 200 करंट अफेयर्स वगैरह जो होते हैं, तो एक साथ काफी सारा रिवीजन हो जाता था उसमें। जैसे पास्ट मंथ का मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे अभी सिर्फ रिवीजन करना है थोड़ा सा, तो मैं वो एक वीडियो देख लेती थी। ओके। तो सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स करंट अफेयर पढ़ने का? आई थिंक अफेयर्स क्लाउड में सबसे मतलब बढ़िया करंट अफेयर्स होते हैं, एंड दे एक्चुअली अपीयर इन द एग्जाम। आई हैव सीन इट माई सेल्फ, सो आई कैन ओनली से फॉर दैट। बाकी चीजों के बारे में तो मुझे पता नहीं है। ऑब्वियसली जो आपने एक्सपीरियंस किया आप उसी को बता पाओगी। तो करंट अफेयर आपने वहां से किया, और वहां के क्वेश्चंस भी आपको मिले हैं एग्जाम में, तो ये तो काफी अच्छी बात है। तो आपने एवरीडे बेसिस पे पढ़ा है उन करंट अफेयर को,
या फिर जैसे वीकली पढ़ा हो या 10 डेज पे पढ़ा हो? एवरीडे बेसिस, एवरीडे। और नोट्स भी बनाते थे? No, I didn't make any notes, but I read them on everyday basis, and I revised them each week. Like each Sunday, I used to revise them. तो मेंस में जितने आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके आप एक मार्क्स को बाइफिकेशन करके बता सकते हो कि कितने कितने मार्क्स के क्या क्या सेक्शन पूछते हैं और कैसे करना है उसे। तो फिर शुरू करते हैं क्वांट से। क्वांट में कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं और कितने हमें सेफ साइड में करके जाना होता है, आना होता है? Safe side, I didn't think as such. 35 questions होते हैं, मार्क्स 60 होते हैं उसके, तो मैक्सिमम जितना अटेम्प्ट हो सके उतना अटेम्प्ट करना है। DI होता है मैक्सिमम, मेंस में जो होता है DI मैक्सिमम होता है, तो वो करना है। और उस पर अच्छा ग्रिप होना चाहिए, उसके बहुत सारे प्रैक्टिस करके रखो तो DI हो जाए, उसके बाद केसलेट्स जो होता है वो हो जाए तो अच्छा है। और रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स के पूछते हैं? रीजनिंग में क्वेश्चंस होते हैं 45। रीजनिंग का भी सेम ही थिंग है कि इसमें रीजनिंग में ये करना है कि छोटे छोटे जो पजल्स है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले कर लेना है, बिकॉज मेंस के पजल्स काफी टफ होते हैं, तो पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको करके पहले कॉन्फिडेंस गेन कर लेना है कि हाँ आई कैन डू इट, देन उसके बाद पजल कर सकते हैं। और इंग्लिश कितने मार्क्स के पूछते हैं और कितने क्वेश्चंस करने हैं सेफ? इंग्लिश का 35 मार्क इसका क्वेश्चन का होता है, और मार्क्स भी शायद 35 ही है इसके। और इंग्लिश का तो ऐसा सच मैंने पूरा ही किया था अटेम्प्ट, ऐसा कोई भी नहीं था कि मैंने छोड़ा हुआ था, बट अगेन उसका भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन है या फिर जो वोकैब से रिलेटेड है वो पहले कर लेना है, उसके बाद पैसेज जैसे क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है, क्योंकि पैसेज में टाइम लगता है जनरली लोगों को। तो पहले आपने ऐसे छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस कर लिए और बाद में रीडिंग वाले के लिए आपने टाइम छोड़ दिया, रीडिंग के लिए। अच्छा, इंग्लिश के पेपर में ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? I don't think grammar is that much important. You should be able to know कि क्या कंसेप्ट है, मतलब पैसेज की बात अगर बोले तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट की बात चल रही है। ग्रामर इज ओनली इम्पोर्टेंट व्हेन इन एरर डिटेक्टिंग क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यस इन दैट। हाँ, उसमें तो जितना पढ़ोगे उसके हिसाब से क्लियर होता जाएगा कि व्हाट शुड बी द राइट सेंटेंस, क्योंकि ग्रामर वैसे स्टडी करना इट बिकम्स रियली हेक्टिक फॉर पीपल, एंड आई नो दैट मैंने वैसे इंग्लिश नहीं सीखा है या फिर मैंने वैसे परफेक्ट नहीं किया इंग्लिश, तो बस पढ़ो पढ़ो या फिर मूवीज देखो, सीरीज देखो, इट्स फन एंड मतलब अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट भी होता है साथ में। तो आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है एक बार उस पर बात करते हैं। 10th 12th और आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है? ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग। इंग्लिश मीडियम से आपने 10th पढ़ा है या फिर अपने स्टेट बोर्ड से 10th? नो नो नो, स्टेट बोर्ड से पढ़ा है मैंने, सेमी इंग्लिश। और 12th तो इंग्लिश में ही, देन उसके बाद एजुकेशन मेरा हुआ है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। और उसके बाद फिर कैसे आपने डिसाइड किया? व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू हैव टू परस्यू इन बैंकिंग सेक्टर? I got to know about it from a friend. Then I researched on it कि कैसा जॉब है, क्या रहता है इसमें, बैंकिंग में जाना चाहिए या नहीं, क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए। उसके बाद मैंने एग्जाम पैटर्न वगैरह देखा कि इज इट डूएबल, तो फिर मुझे लगा कि हाँ आई कैन डू इट, तो आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन। तो इस तरह से आपने सोचा, तो फिर आपने इंजीनियरिंग वाली जॉब में क्यों नहीं ज्यादा जाना प्रेफर किया? इंजीनियरिंग वाले जॉब में वही था कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है जो रहता है लोगों का हमेशा, और अभी कोविड की वजह से तो और भी मुझे थैंकफुल लग रहा है दैट आई एम इन दिस जॉब एंड नॉट इन सम प्राइवेट सेक्टर जॉब। तो सिंस आपने जूनियर असिस्टेंट का भी जॉब किया हुआ है और अब आप पीओ बन गए, तो आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता है which job is better salary wise, so everyone knows कि PO is better, but सब कुछ के एस्पेक्ट में, वर्कलोड, then transferable, उन सब चीजों में which job is better? I think if असिस्टेंट में ये था कि टाइमिंग फिक्स थे आपके कि इतने बजे आप घर निकल ही जाओगे,
तो हाँ, तो उसमें भी फिर भी वो ब्रांच पे डिपेंड करता है एक्चुअली, क्योंकि मेरी जो ब्रांच थी वो थोड़ी बहुत हेक्टिक थी, तो तब भी मैं लेट ही निकलती थी। Yeah, so the end timing was 5 and I used to leave at 6:30, 6 or something. And ऑफिसर की जॉब में ये है कि कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं है सच। जब आपका काम हो तो आप निकल जा सकते हो, सो इफ यू आर एफिशिएंट तो तुम निकल जा सकते हो। ओके, और वैसे हाँ, रात में 8-9 बजे तक भी रुकना पड़ता है, वर्कलोड ज्यादा है? वर्कलोड कुछ सिचुएशंस में, कुछ किन दिनों में ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है। यू शुड बी, अगर तुम प्रॉपरली मतलब कंसिस्टेंटली अपना काम करते हो एफिशिएंसी से, तो आई डोंट थिंक वर्कलोड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ओके ओके, और सैलरी वाइज तो एवरीवन नोस कि पीओ इज फार बेटर देन एनी अदर, यू नो, आईबीपीएस पीओ भी इतना ज्यादा नहीं है जितना एसबीआई पीओ में आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं। सो यू नो, कैसा लगता है, हाउ प्रिविलेज्ड यू फील टू बी एन एसबीआई पीओ? आई फील एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं जिनका इसमें हुआ है दूसरे बैंक्स में, पीएनबी में है एक फ्रेंड, बट या दे आर सेम, दे आर ऑन द सेम लेवल, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा लगता है कि हाँ मेरी सैलरी ज्यादा है देन पीपल हियर अबाउट एसबीआई के एसबीआई है द ब्रांड नेम, सो या इट फील्स नाइस। ओके, और यहाँ एसबीआई में आपको इंसेंटिव्स भी आई थिंक ज्यादा बढ़िया मिलते हैं रेदर देन अदर, यू नो, आईबीपीएस एग्जाम्स, आईबीपीएस बैंक्स। या सो किन एरिया में ऐसा है कि आईबीपीएस से एसबीआई बेटर है? किन एरियाज में बेटर है, आई कांट से एज सच। ओके, सो यू कांट से एज सच। ओके, ठीक है, तो मतलब वर्कलोड आपका सेम ही है, सैलरी बस थोड़ी सी ऊपर नीचे है, एंड ऑब्वियसली जो पोस्ट का नाम है वो सेम ही है, रेपुटेशन आपका सेम ही है, स्केल 1 ऑफिसर। ओके, और रिगार्डिंग, यू नो, अंदर अगर हम जाते हैं बैंक के, तो यू नो जो स्केल 1 से स्केल 2 में जाते हैं, फिर आपको एग्जाम देना होता है, तो दोनों में सेम है? आईबीपीएस एसबीआई में दोनों में एग्जाम देना होता है, रिटन एंड देन इंटरव्यू फॉर प्रमोशन? No, I have no idea about as IBPS. I can only say about SBA. तो उसमें हाँ एग्जाम देना होता है, इंटरव्यू देना होता है। तो ये सारी बातें तो हो गई आपके आफ्टर एसबीआई और आईबीपीएस बैंक में कैसे क्या लाइफ है, स्टाइल है। अब हम बात करते हैं आपके जो लास्ट पार्ट बच गया है। प्रीलिम्स की बात कर ली हमने, मेंस की बात कर ली, जो लास्ट पार्ट हमारा बचता है जीडी पीआई। तो आपने जीडी और पीआई की तैयारी कैसे की? जीडी और पीआई की तैयारी है कि जो भी बैंकिंग से रिलेटेड अभी लेटेस्ट टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे ध्यान रखना है, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के रखना है। देन उसके बाद एसबीआई का जो है इंटरव्यू से पहले एक बायोडेटा फॉर्म आता है वेबसाइट पे, तो वो आपको फिलअप करना पड़ता है। उसमें होता है आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट जो भी है, तो आप जो भी लिखे वो बिल्कुल सोच समझ के लिखना है, बिकॉज इफ यू राइट Hindi is my favorite language or something like that, then you should know a lot about it. You should know some authors, some poets, something, मतलब something significant about that thing, and basically everything about that thing, because इसलिए वो जो बायोडेटा फॉर्म है वो बहुत केयरफुली लिखना है। उसमें जो भी लिखना है बिल्कुल मतलब उस पे सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास तैयार होना चाहिए। बेसिक आइडिया रखो बस अपने पास कि थोड़ा बहुत कुछ तो भी बोलते हैं। और उसके बाद जो अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से जैसे मेरा था, तो वहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एक दो, तो उसका भी आंसर थोड़ा बहुत होना चाहिए आपके पास, लेकिन ज्यादा नहीं पूछते। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग में क्यों है, इसका आंसर आपको तैयार रखना है बस। ओके ओके, सो आपने भी ऐसे क्वेश्चंस फेस किए हैं, ये बहुत नॉर्मल होता है सबको जानना कि इंजीनियरिंग के बाद बैंक में कैसे इंटरेस्ट किया आपने, और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, कितनी देर इंटरव्यू चला? कॉमन क्वेश्चन मेरा इंटरव्यू चला आई थिंक 10 मिनट चला होगा, 10 मिनट चला था। उसमें कॉमन क्वेश्चन ही पूछा मुझे। जो पहला इंटरव्यू था उसमें काफी पूछा था कि टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो क्यों जाना चाहते हो, तो फिर तब मैंने कहा, तो आंसर ऑनेस्टली
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत फेक बोल रहे हो, बिकॉज देन वो बहुत ज्यादा फॉलो अप करते हैं उस पर कि अगर तुमने बोला कि हाँ मुझे बहुत फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्ट आने लगा, तो देन दे विल आस्क कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लगा तुम्हें, या फिर क्यों इंटरेस्टिंग लगा, और बहुत सारी क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये क्या है वो क्या है। तो जस्ट बी ऑनेस्ट एंड थोड़ा सा दूसरे कैंडिडेट से ट्राई करो कि थोड़ा सा हटके हो, बट इट्स नॉट फेक। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि आई एंटर्ड फॉर जॉब सिक्योरिटी, बिकॉज मुझे ये लगा था कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है तो यहाँ पे आना चाहिए, बट वंस आई एंटर्ड आई रियली लाइक नोइंग अबाउट इट, लाइक नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्टफ, सो दैट्स व्हाई आई स्टेड। हाँ, तो ये थोड़ा लग रहा है लॉजिकल टाइप का आंसर। हाँ, क्योंकि पहले से कैसे आपने फाइनेंशियल में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, फिर पूछेंगे फिर इंजीनियरिंग क्यों किया, 4 साल टाइम वेस्ट कर दिया। एग्जैक्टली। सही है। तो आपने जो पहला इंटरव्यू फेस किया है आईबीपीएस का, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पाए, तो आपको ऐसा क्या लगता है, क्या गलती हो गई, क्या मिस्टेक रह गया, क्या मिस्टेक हो गई जो वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाया और जिसको आपने ओवरकम किया एसबीआईपीओ में? सबसे बड़ी मिस्टेक आई थिंक वो था कि मैं नर्वस हो गई थी तब। मैंने मैं तब काम कर रही थी ऑलरेडी एज अ जूनियर एसोसिएट, और पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी मेरी इंटरव्यू के लिए। तो जब मैं गई तो कहीं ना कहीं ऐसा माइंड में रहता है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आई विल नॉट बी एबल टू डू ग्रेट। सो वो नर्वसनेस था साथ में कि हाँ मैंने नहीं किया है तो मेरा एट पार नहीं होगा। तो don't keep that in mind, just relax. तो relaxing is the key कि मतलब do your best, जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो do your best, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद तो जस्ट रिलैक्स, जब तुम जाओ वहाँ पे तो जस्ट रिलैक्स। ओके सो लाइक एवरीवन नोज कि सबके राइटिंग स्किल अपनी अपनी अलग अलग तरह की होती है, the way of writing the essay and descriptive, but what strategy you opted? आपने कौन सी क्या strategy opt की? What should be the do's and what should the don'ts while writing essay in descriptive section? In essay don't get too confused. You can मतलब थोड़े बहुत 2-4 पॉइंट्स निकाल के रख सकते हो तुम अपने जो रफ शीट पे है कि इस टॉपिक पे मुझे एलैबोरेट करना है, इस टॉपिक पे थोड़ा सा, इस टॉपिक पे थोड़ा सा। तो हाँ, तो बस उसी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन लिखना है और ट्राई करना है कि ये हो, थोड़ा सा डेवलप हो साथ में। उसके बाद तो इससे ज्यादा और कुछ तो नहीं है उसमें। तो अगर आपको सिर्फ ये करना है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होके बहुत जम्बल्ड ऐसे नहीं लिखना है, और बहुत ये नहीं करना है कि बहुत बहुत इलेबोरेट भी नहीं करना है, और ऐसे बहुत डेकोरेटिव लैंग्वेज भी नहीं यूज करना है, जस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज, बट अच्छे पॉइंट से लिखना है ठीक से। ओके, और व्हाट अबाउट लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग में भी ज्यादा कुछ तो होता नहीं है, उसमें लिखना नहीं होता है वैसे, तो जस्ट कीप इट टू द पॉइंट, यूज सिंपल लैंग्वेज, कीप इट टू द पॉइंट, दैट्स ऑल। ओके, सो कितने मार्क्स का पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन? डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में इसका होता है कि 30 + 20 मार्क्स होता है शायद। 30 and 20, 50 मार्क्स? हाँ तो हाँ, 30 फॉर ऐसे एंड 20 मार्क्स फॉर लेटर राइटिंग। तो वैसे ही टाइम डिवाइड करना है कि इसको ऐसे को ज्यादा देना है, लेटर राइटिंग को कम देना है। लेटर राइटिंग हो सके तो मैंने तो पहले ही कर लिया था, सो दैट कम टाइम में वो हो जाएगा, उसके बाद आई कैन राइट माय एसे एंड यूज माय टाइम फुली। सो लेटर राइटिंग में आई थिंक आपका फॉर्मेट सबसे इम्पोर्टेंट रहता होगा कि यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट एंड टाइम लिमिट ऑफ कोर्स। ओके, और आपने जैसे कि बताया स्टूडेंट्स को काफी हेल्प भी मिल सकती है। ऐसे में सबसे पहले आप पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो अपने रफ शीट में, ताकि आप उसको जंबल ना कर दो, पहले मतलब उसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स, फिर नेगेटिव पॉइंट्स, फिर पॉजिटिव, ऐसे मिक्सअप नहीं करना है। पहले आपने उसको पॉइंट बना दिया, फिर लिखना शुरू किया, ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, एंड जस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज। ज्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है आई थिंक, नहीं तो क्या पता उन्हें भी समझ में ना आए, बट ऑब्वियसली दे आर वेरी मच टैलेंटेड। बट आपको कोशिश करना है कि सिंपल सा अपना ऐसे लिखें, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह अवॉइड करें, टाइम लिमिट के अंदर, वर्ड लिमिट के अंदर लिखें। सो ये सारे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसे और लेटर राइटिंग की। तो यहाँ तक तो हमने बात की आपकी प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एंड जीडीपीआई।
जीडी में एक बात रह गई कि जीडी में आपका कैसा पैनल कैसा था, क्या टॉपिक पूछा आपसे, एंड क्या जीडी के साथ ग्रुप एक्सरसाइज भी हुआ? हाँ, जीडी के साथ ग्रुप एक्सरसाइज होता ही है। जीडी में हमें टॉपिक पूछा था कि आर द जॉब्स बीइंग टेकन बिकॉज ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, तो उस पर हमने डिबेट किया था। पैनल अच्छा था। पैनल का ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है, वो बस स्टार्टिंग में तुम्हें प्रिपरेशन के लिए थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, 5 मिनट। उसके बाद आपको उस पर बात करनी होती है। तो जो आपके ग्रुप मेंबर्स है, द पॉइंट इज आपको उनके साथ ये आर्ग्यूमेंटेटिव भी नहीं होना है, लेकिन अपना पॉइंट भी रखना है, अपना पॉइंट भी रखना है। सो ट्राई टू से समथिंग, मतलब कंप्लीटली आप ये नहीं रह सकते हैं, चुप भी नहीं रहना है, और बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव भी नहीं होना है। जस्ट कीप keep it like a friendly conversation. And जी में ये होता है ग्रुप एक्सरसाइज में कि आपको प्रायोरिटाइजेशन एक्सरसाइज देते हैं वो, कि कोई चीज़ है उससे रिलेटेड कि क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि व्हाट आर द क्वालिटीज इम्पोर्टेंट दैट आर नेसेसरी इन अ लीडर, तो उसके हिसाब से सारे लोग प्रायोरिटाइज करेंगे अपना अपना अलग अलग। उसके बाद आपको ये करना होता है, डिस्कस करना होता है कि क्यों दिस क्वालिटी शुड बी नंबर 1 और दिस व्हाई दिस शुड बी नंबर 2। तो वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंटेटिव ना होते हुए सबको एक कंसेंसस पे आना इज द एम ऑफ द एक्सरसाइज, कि आपको एक कंसेंसस पे आना होता है। दैट्स ऑल। Okay, that's awesome. So I think आपने काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ का, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, क्योंकि वहाँ पे सभी एक जैसे बच्चे होंगे, सबने मेंस क्वालिफाई किया हुआ, सारे स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल टाइप के होंगे। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो एक वर्किंग एस्पिरेंट फेस करते हैं। सो मुझे लगता है आपसे बेटर ये कोई नहीं बता सकता, सिंस यू आर आल्सो वर्किंग एस्पिरेंट। तो वर्किंग एस्पिरेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, एंड हाउ यू ओवरकम इट व्हाइल यू आर प्रिपरेशन? वर्किंग एक्सपीरियंस का एक मेन चैलेंज होता है कि टाइम नहीं मिलता है। तो जस्ट डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंग टू मतलब योर कंफर्ट, कि जैसे मैंने बोला कि प्राइम टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ें करो जो आपको मतलब ज़्यादा रिटेन करने की ज़रूरत होती है, जैसे क्वांट। देन रात में आप ये कर सकते हो, थोड़ा फन चीज़ें कर सकते हो। और वीकेंड्स पे डेफिनेटली टेस्ट देना ही है। अगर नॉर्मल वीकडेज पे नहीं होता है, क्योंकि मैं तो SBI में ही थी और असिस्टेंट का जॉब कर रही थी, तो शायद मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम मिला था। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा मुझसे भी ज़्यादा टाइम मिलना। तो वो वीकेंड्स पे टेस्ट देके उनका तभी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर वीक में वो अपने हिसाब से एनालिसिस करते रह सकते हैं उसका, और प्रैक्टिस भी साथ में चालू रह सकते हैं। तो प्रीलिम्स में तो आपने कहा जैसे आप पहले से भी बहुत मॉक टेस्ट लगा देते थे, आप एवरी डे लगाना, देन व्हाइल प्रिपरेशन आप एवरी 2 डेज आपने लगाना शुरू किया। तो मेंस में आपने मॉक टेस्ट लगाए, और अगर लगाए तो कितने लगाए? मेंस में मैंने 5 से 6 ही मॉक टेस्ट लगाए होंगे। हाँ, 5 से 6 ही लगाए हैं। और मैंने वीकेंड्स पे ही लगाया है वो, बिकॉज 3 घंटे का टाइमिंग हर रोज निकालना वाज नॉट पॉसिबल। तो मैंने वीकेंड्स पे ही लगाया है, और उसके बाद उसका एनालिसिस करा हुआ है मैंने। ओके, तो अभी तक हमने बात कर ली प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव एंड जीडीपीआई की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एंड कैसे आपने सारे अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया वर्किंग एस्पिरेंट होने के बावजूद भी। अब हम बात करते हैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड की। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिला हो, या फिर फैमिली ने आपको होता है ना कभी कभार हम फेलियर्स हमको मिलने लग जाता है, कोई हमें चाहिए होता है एक सपोर्ट सिस्टम टू मोटिवेट अस। सो हाउ डिड योर फैमिली प्लेड द रोल? माय फैमिली वाज सुपर सपोर्टिव। उनको तो पहले ही बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, बैंकिंग इज अ गुड सेक्टर। तो वो काफी सपोर्टिव थे। जब भी कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभार स्टार्टिंग में, कि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसा होता था कि गलतियां कर रही हूँ बहुत ज्यादा, या फिर सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ। तो उस वक्त मेरी मम्मी जो है और मेरी सिस्टर जो है छोटी, वो दोनों भी काफी सपोर्टिव थे। इनफैक्ट आई थिंक हाँ, वही दोनों बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। और मेरे पापा तो पहले से ही सपोर्टिव है ही, बट उनका ऐसा मतलब रोज से ये नहीं था, रोज के रोज। बट व्हेनेवर आई वाज सुपर डाउन,
तो तब सारे के सारे तीनों के तीनों वाज रियली सपोर्टिव टू मी। ओके, तो एक फैमिली का सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम एकदम अपने लो लो स्टेट में रहते हैं, प्रिपरेशन के लो स्टेट में। कई मुझे लगता है जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे होंगे, चाहे वो बैंक में हो, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्लियर करते होंगे, एक फेज तो ऐसा आता ही होगा जब वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते होंगे। तो आपको क्या लगता है कैसे उन्हें इस डिप्रेस्ड लेवल में मोटिवेशन उनको कैसे मिल सकती है, क्या उनको करना चाहिए टू गेट मोटिवेटेड? टू गेट मोटिवेटेड यू शुड, मतलब डिप्रेशन से बाहर निकलने का वन वे इज कि अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ जो है सोशलाइज करो थोड़ा बहुत। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं, देन कम्प्लीटली बुक्स में या फिर पढ़ाई में, स्टडी में, वही में टाइम वो अपना पूरा गंवा देते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में थोड़ा सा फ्रेंड्स के भी साथ कनेक्ट रखो, सो दैट बहुत ज्यादा लोनली ना फील हो बाद में। बिकॉज ऐसा हो जाता है कि स्टडी करते 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 बहुत कॉन्टेक्ट टूट जाते हैं, सो बहुत लोनली हो जाता है इंसान। So just call up your family, call up your friends. That's all. Okay. तो जो भी स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो रहे हों आफ्टर अ लॉट ऑफ फेलियर्स, और अभी कोविड-19 की वजह से आपके एग्जाम अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पा रही। पहले होता था कि हर एक महीने एग्जाम आ जाती थी, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, देन काफी सारे पीजीडीयू एग्जाम्स भी होते थे। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो काफी ज्यादा डिमोटिवेशन हो गया अभी स्टूडेंट्स के अंदर कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम हमें मतलब हमें राइट करने का मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर एक एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए फिर हमें और कितने दिन का वेट करना पड़ेगा। अभी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो ये सारी काफी ज्यादा बच्चों को डिमोटिवेट करती है सारी चीजें। तो इस सिनेरियो में आप क्या बोलना चाहोगे फॉर दैट? इस सिनेरियो में तो जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि हर महीने तुम्हारा एग्जाम नहीं आ रहा है, तो तुमको और ज्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। जस्ट फोन योर स्किल्स अभी के लिए, और दैट्स ऑल। जस्ट फोन योर स्किल, यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। डोंट सी कि एग्जाम कब आएगा। ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम नहीं आएगा तो प्रिपरेशन नहीं करेंगे। जस्ट कीप योर प्रिपरेशन इन प्रोग्रेस, और एग्जाम आएगा तब आप रेडी रहोगे उसके लिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले कई बार स्टूडेंट्स कहते थे कि हर महीने एग्जाम हो जा रहा है, हम प्रेशर में रह रहे हैं, ये एग्जाम दें फिर उधर उसका सेंटर है फिर तुरंत उधर चले जाएं। अभी ये तो है कि रिलैक्स मोड में हो, अभी सिर्फ आप पढ़ो, तैयार करो अपने आप को, 100% देने की कोशिश करो, ताकि फिर बाद में ऐसा ना बोलना पड़े। थोड़ा सा और मौका मिल जाता फिर हम और अच्छा कर पाते। ठीक है, Exactly. तो ये सारी बातें तो हमने कर ली, आपके फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फन सेक्शन व्हिच इज अ रैपिड फायर राउंड। इसमें आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस एंड आपको एक छोटे वर्ड में या फिर वन वर्ड या छोटे स्टेटमेंट में आंसर देना है विदाउट थिंकिंग टू मच। So your first question is, if you could have coffee with someone from the past, who would it be? One of my friends, good friend. Okay. Who are the 3 people, alive or dead, who are closest to you besides your family member? Again, my friends, Rupendra, Anjali, and Pratik. Okay, great. Most proud moment? When I cracked SBI PO. Okay, awesome. That is indeed a proud moment. Biggest weakness? Biggest weakness? Sorry. Biggest weakness, I am too hard on myself. I criticize myself too much. Okay. So, if you had one superpower, what would it be? Superpower? Flying, I would say. Okay. Then I could travel the whole world. Okay, great. So that was really a very fun session. आपके बारे में और जानने को मिला. Okay, so that was a very fun session with you and काफी चीजें जानने को मिला आपके बारे में. अब आप कुछ मैसेज अगर हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड टू बी मोटिवेटेड, देन आप दे सकते हो एंड मैसेज टू द एस्पिरेंट्स. My message would be कि don't get demotivated क्योंकि तुम मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर स्टार्टिंग में तुम आ नहीं रहा है तुम्हें. Just try to hone your skills. मतलब जो जहाँ पे तुमको कमी लग रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करो कि कहाँ पे कम पढ़ रहे हो तुम, और वही कि उसी के ऊपर ये करते रहो.
जब तक वो सही ना हो जाए तब तक उसको करते रहो and give lot of mock test. Do mock test every day, at least one. Okay. That's all. सृष्टि के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है एंड ये सच में जरूरी है, ये मैं अपने भी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी। आप लोग मॉक टेस्ट रोज लगाओ, उसकी एनालिसिस करो एंड क्योंकि फिर वो आपको एक एग्जाम प्रेशर से डर नहीं लगेगा। नहीं तो आप सीधा एग्जाम में जाओगे तो आपको बहुत प्रेशर सा फील होगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और जबकि अगर आप रोज मॉक टेस्ट लगाते हो तो वो प्रेशर कम हो जाता है, आपको लगेगा ये तो मेरा रोज का ही है। और एक फिक्स टाइमिंग पे मॉक टेस्ट लगाओ, ये एक आपके लिए सबसे बढ़िया टिप है जो एक आपको टॉपर भी दे सकते हैं और आपको हर टीचर्स भी देंगे ये टिप। तो आप इस पे काम करो एंड एक हमारे शो का परंपरा सा रहा है कि जो भी हमारे यहाँ टॉपर आते हैं वो अपने किसी टॉपर फ्रेंड को टैग करते हैं सो दैट आवर टीम could get connected with them and they can call over here. तो आप किसे टैग करना चाहोगे? I would like to tag Debashish Saha. Okay. He is? He is an SBA PO, same batch, 2019. Okay. So I request our team to get to him and call upon our stage. Okay, that was a very interactive and very beneficial session कह सकती हूँ। स्टूडेंट्स को लगेगा अगर वो आपकी छोटी छोटी टिप पे ध्यान दे, जैसे कि वोकैबुलरी नोट करना, उसको रिवाइज करना, करंट अफेयर एवरीडे बेसिस पढ़ना, तो इन चीजों पे स्टूडेंट्स काम करके अगर कुछ भी फ्यू स्टूडेंट भी अगर मैं कहूँ कि इस पे काम करके SBI PO बन जाते हैं तो काफी खुशी होगी हमें। So all the very best, and अगर आपको कोई भी query है तो आप write कर सकते हो comment section में, and if you really like this show then press the like button and do subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye, take care and all the very best for the upcoming exams.